आज की इस नई वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ नोट की। किसकी बात करने वाला हूँ? नोट की। नोट के अंदर क्या था? नोट के अंदर था कि भाई साहब एफ एक्स जी एक्स दे रखे, दोनों में डिफरेंशियल होते हैं। ये पर तो ये और ये डिफरेंशियल होते हैं। ठीक, ये वाली कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन आपको समझ में आई गई होगी क्योंकि अच्छी खासी कंडीशन है। दूसरी कंडीशन की बात है, fx is differentiable at x is equal to 0. And gx is not differentiable at x is equal to b. fx is differentiable at x is equal to a and gx is non-differentiable at x is equal to a. एक डिफरेंशियल है, एक नहीं है। यहाँ पे दोनों ही थे, यहाँ पे एक होगा एक नहीं होगा, यहाँ पे दोनों ही थे। सबकी कंडीशन ये always not differentiable at x is equal to, but nothing can be said about product and questions. उसके बारे में कुछ भी नहीं बता सकते। थर्ड की बात करें, fx gx are non differentiable at x is equal to, then nothing can be said to be some difference product and questions. इसके बारे में कुछ भी नहीं बोल सकते। ये हमारी क्या खासियत है? इसके बारे में हम बोल भी कैसे सकते? कुछ भी नहीं बोल सकते इसके बारे में। फोर्थ नंबर की fx is differentiable at x is equal to a. डिफरेंशिएबल है कहाँ पे? x is equal to a पे। f की वैल्यू कितनी? 0 है। उसके बाद gx जो मेरा है कंटीन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल। एक डिफरेंशिएबल, एक नॉट डिफरेंशिएबल बट कंटीन्यूअस। देन fx into gx is differentiable। ये वाली कंडीशन है। कंडीशन याद रखना, अगर दोनों ही नॉन डिफरेंशिएबल तो किसी के बारे में कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन ये डिफरेंशिएबल है, एक नॉन डिफरेंशिएबल, इसका कैसे होगा? तब जाके अपन प्रोडक्ट के बारे में कुछ बोल सकते हैं जब एक कंटीन्यूअस दोनों का प्रोडक्ट डिफरेंशिएबल हो। फिफ्थ नंबर की बात है, डेरिवेटिव फंक्शन ऑफ कंटीन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन नीड नॉट बी कंटीन्यूअस। Derivative function of continuous and differential function need not be continuous. Derivative function of a continuous and differentiable function need not be continuous. ये वाली चीज है। Derivative function of a continuous and differentiable function need not be continuous. Derivative function of a continuous and differentiable function क्या लिखा है कि डेरिवेटिव फंक्शन ऑफ कंटीन्यूअस एंड डिफरेंशियल फंक्शन कुछ ऐसा नहीं बोल सकती उसका डेरिवेटिव कंटीन्यूअस होगा। कोई फंक्शन कंटीन्यूअस एंड डिफरेंशियल है लेकिन उसका डेरिवेटिव नहीं बोल सकते कि वो कंटीन्यूअस होगा। ठीक है, तो ये थी हमारी कुछ नोट्स। अब इस नोट्स के बाद हम आगे mode of fx is differential। ये वाली चीज है। add those points।
लिख देते, फिर उसके बारे में बात करता हूँ क्या लिखा।
दोस्तों दिख रहा है ना सब कुछ आप लोगों को? सब कुछ दिखना चाहिए। रुकिए, अब कैसा लग रहा है? हाँ, अरे ये नहीं, अब देखिए, हाँ अब बिल्कुल दिख। At those points where fx is a non-zero, we can say if fx is a differentiable, then mode of fx is differentiable. ये वाली कंडीशन होनी चाहिए, then ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाती है। fx is differentiable, then mode of fx is also differentiable. At those points where fx is 0 as well as f dash x, we can say mode of fx is differentiable if fx is differentiable but fx is 0 and f dash is a non-zero. ये वाली कंडीशन अरे समझ में आई? ये वाली कंडीशन अरे आई कि नहीं आनी तो चाहिए। At those points where fx is 0 as well as f dash x, we can say mode of fx is a differentiable if fx is differ but f of x is 0. If fx is differentiable but fx is 0 and f dash is non-zero, then even if fx is differentiable, mode of fx will be non-differentiable. The determination of a function which are differentiable and satisfying the given functional rule. ये चार रूल लिख रखे हैं मैंने। All basic steps: write the expression for fx. Second, manipulate the numerator, that is this, in such a way that the given functional rule is applicable. Now apply the functional rule. Simplify. Apply the rule. Simplify RHS and get fx in terms of x along the constant if any. Third number, integrate the both sides with respect to x to get fx as the function of x along with constant of integration. Evaluate the constant of integration using boundary value condition. तो ये सारी की सारी कंडीशन लिख रखी है मैंने। उसके बाद क्या करना है? क्वेश्चन करना है। किसके ऊपर? स्टेप्स के ऊपर। तो समझ गए दोस्तों, ये वाली चीज आपको समझ में आ चुकी है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ 4 बेसिक स्टेप्स की। तो 4 बेसिक स्टेप्स के ऊपर थी क्वेश्चंस, और इन क्वेश्चंस के हम क्या करेंगे? पार्ट, और उसके बाद चीजों को खत्म कर देंगे यहाँ पर ही। बिल्कुल बिल्कुल। और क्या? Let fx be differentiable. Satisfying the equation fx plus y is equal to f of x plus f of y plus x square y plus xy square for all real number x and y suppose limit x tends to 0 f of s
0 f डैश x f ऑफ x, ये वाली कंडीशन हमको क्या करनी है, फाइंड करनी है। कब फाइंड करनी है, तो क्वेश्चन में जहाँ पे बोला गया उसी हिसाब से फाइंड करो, नीचे के स्टेप्स को देखो और फाइंड करो। ठीक है, उसकी बात करते हैं। ये f डैश x होगा, पहले f डैश x लिखेंगे, f ऑफ 0 निकालना है, ये निकालना है, ये निकालना है, ये निकालना है। सबसे पहले यही आएगा, फिर ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, या फिर ये आ जाएगा, तो ये आ जाएगा। सीधी सी बात है, इसमें से एक करेंगे तो ये भी आ जाएगा। ये लिख रखा है, हाँ, x स्क्वायर y प्लस एक्स वाई स्क्वायर। ये चीज इस प्रकार से होगी, ठीक है। इसके बाद अपन बात करने वाले किसकी, जो लिख रखी, लिख देने में क्या दिया, तो ये वाली चीज दे रखी है कि ये वाली लिमिट क्या होगी, ये होगी 1, बिल्कुल 1 होगी। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है कि अपने x निकालेंगे डायरेक्टली, क्या इक्वेशन होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0, फिर उसके बाद x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय h, ये वाली इक्वेशन निकालनी थी, ठीक है। फिर मैंने प्रिंटिंग न्यूमरेटर देन getting this in a such a way that the given functional rule is applicable, now apply the functional rule। फंक्शनल रूल को क्या करना है, अप्लाई करना है। कौन सा दे रखा है, इक्वेशन बताइए। इसके लिए ये वाली लगाएंगे एप्लीकेशन रूल,
तो एच कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एच प्लस एक्स स्क्वायर एच प्लस एक्स। ओके सही है, माइनस एफ ऑफ एक्स अपन में क्या आ जाएगा एच आ जाएगा। ठीक है, फिर simplify RHS and get x in terms of x along with fx नहीं होगा यहाँ पे fx in terms of x with constant any। अब क्या करना है fx निकालना है, तो सेकंड ये पूरा खत्म हो गया। ये सेकंड वाला क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा। एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। कुछ इस प्रकार से चीजें बच रही हैं। फिर तो इस प्रकार से okay। Third, integration with both sides with respect to x to get fx, and fourth, you will take constant of integration using boundary value condition, using the boundary value condition। क्या होगा ये तो वन होगा, दे भी रखा है, देखो ये रखा है, इसका जीरो एफ एक्स कितना है एफ एक्स कितना आएगा अभी, ये आएगा एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स। दो तो मिल गया आंसर, दो हो गए। फिर क्या बचा एफ डैश जीरो कितना आएगा, जीरो का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 1 आएगा। और एफ ऑफ जीरो यहाँ पे एक चीज आएगी कांस्टेंट सी, क्योंकि इंटीग्रेशन किया है तो कांस्टेंट आएगा। एफ ऑफ जीरो कितना आएगा सी के हिसाब से आएगा, ये वाली चीज आएगी। समझ गए क्या, एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू सी। तो ये था हमारे सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर। अब आगे चलते दूसरे क्वेश्चंस की। Let f of x be a differentiable for satisfying f(x) by y is equal to f of x minus f of y, where x and y greater than equal to 0 if f dash 1 is equal to 1, then find f of x। ये वाली चीज हमको क्या करनी है, फाइंड करनी है। भाई साहब कंडीशन तो दे रखी है, सबसे पहले क्या करें f dash x का फॉर्मूला लिख देंगे, क्या है लिमिट h टेंड्स टू 0 f of x प्लस x की माइनस h। अपन यहाँ RHD लिखते हैं अपन h
देखो दिस एंड दिस, इसको इसके साथ इक्वेट करके तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं ना, बिल्कुल। ये वाली चीज आएगी, फिर आएगी कि नहीं आएगी, आएगी आएगी। इसी चीज को कुछ इस प्रकार से लिखा गया है। एफ ऑफ 1 की वैल्यू क्या है, 0। कहाँ से पता चलेगी, एक्स वाई क्या दे रखा है 1, एफ ऑफ 1 कितना आएगा 0। देखो ये 1 आएगा, ये भी 1, ये भी 1, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। कब, ये किसकी वैल्यू है, एक्स को हटा दो साइड में, एफ डैश 1 लिख रखा है, अपन में क्या आ जाएगा एक्स, तो ये फाइनली क्या आ जाएगा 1 बाय एफ डैश एक्स की वैल्यू हमको दे रखी है व्हिच इज इक्वल टू 1। एफ डैश 1 क्या होगा बताइए मेरे को जरा, एफ ऑफ 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1 होगा, अपन में क्या आएगा एच आएगा, अरे हाँ बिल्कुल, एफ डैश एक्स कितना आएगा तो फिर 1 बाय एक्स आ जाएगा। एफ एक्स कितना आ रहा है ln x प्लस सी, एफ ऑफ 1 कितना आएगा which is equal to c, और c के इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। तो फाइनली अपन एफ ऑफ एक्स को लिख सकते हैं ln x, ऐसा लिख सकते हैं कि हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, निकाल लगा एफ ऑफ एक्स निकालना। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, इस प्रकार से लिख सकते हैं ना यार, फिर से वही लिखा है, पहले जो किया था उसका उल्टा रिवर्स प्रोसेस। ये गलत है, ये गलत है, ये आपको समझ में आया ना, ठीक है। एफ डैश एक्स नहीं आना पूरा का पूरा कितना है 1 बाय एक्स, फिर यहाँ से एफ एक्स निकाल लिए, एफ एक्स को हमको फाइंड करना है, वो मिल जाए हमको। अगर कांस्टेंट सी डालते हैं तो इसका आंसर क्या आएगा 0 आएगा। तो ये था फंक्शनल इक्वेशन, और इसी में मैंने क्या किया, इसको दी है
कंडीशन समझ में आ गई आपको? ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छा था, बढ़िया था। चलिए इसके बाद एक और क्वेश्चन कराता हूँ आपको इसी टॉपिक के रिगार्डिंग। एक और क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। करिए भाई इसको x के साथ डिफरेंशिएट करिए, x के साथ डिफरेंशिएट करिए। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, f डैश x प्लस वाई, x बाहर आएगा, x के साथ कुछ भी नहीं है तो 1 ही बाहर आएगा। फिर यहाँ पे f डैश x हो जाएगा, 1 बाहर आएगा, ये वाला कांस्टेंट 0 हो जाएगा, यहाँ पे 2y हो जाएगा, ये -1 भी 0 हो जाएगा। हटाओ सबको, ये वाली चीज आएगी, ये हाँ बिल्कुल आएगी। अगर यहाँ पे अपन 0 डाल देंगे, x को क्या करेंगे 0, तो क्या आएगा f डैश y इज इक्वल टू f डैश 0 प्लस 2y। f डैश 0 क्या दे देता है, अंडर रूट 3y प्लस 2y। f डैश y की वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट 3 प्लस 2y। अगर y 0 डालूंगा तो क्या आएगा बताइए, इस वाले में f डैश x इज इक्वल टू f डैश x प्लस 2 0। तो ये कट हो जाएगा, यहाँ से ये f डैश x ये भी कट हो जाएगा, सब कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा y 0 डालने पर। तो ये वाली चीज होगी बिल्कुल भी नहीं, ये वाली चीज होगी, ये वाली चीज ऐसे अपन y 0 करके नहीं फाइंड कर सकते। f डैश y इज इक्वल टू क्या है, f y क्या आएगा, f डैश y में से f y की बात करते हैं, f y आएगा अंडर रूट 3y प्लस 2y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 व्हिच इज इक्वल टू y स्क्वायर। तो ये आएगा e प्लस c, f y आ गया। ठीक है, इसी प्रकार से सेम टू सेम प्रोसेस किसके लिए की जाए, y के लिए। तो f डैश x प्लस y साइड में लिख रहा हूँ, यहाँ पे f y कितना आएगा, अंडर रूट 3y प्लस y स्क्वायर, ये आएगा f y। फिर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y,
एफ डैश एक्स प्लस वाई इंटू वन इज इक्वल टू एफ डैश एक्स तो गया हटाओ जीरो, एफ डैश वाई प्लस 2x ये वाली चीज आएगी। फिर एफ डैश एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ डैश वाई प्लस 2x ये वाली होगी। यहाँ पे अपन y को क्या करेंगे जीरो, तो क्या आएगा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ डैश वाई, ये भी जीरो आ जाएगा और ये 2 इंटू एक्स वैसा का वैसा आएगा। यहाँ पे क्या आएगा अंडर रूट 3 प्लस 2x एफ एक्स क्या आएगा, दोनों साइड डिफरेंट इंटीग्रेशन करना है, एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स अंडर रूट 3 प्लस 2x इंटू होल का इंटीग्रेशन dx के साथ। इसका आंसर क्या है, इसका आंसर एफ एक्स आएगा। इसका आंसर कुछ इस प्रकार से आएगा अंडर रूट 3 इंटू डी एक्स प्लस 2x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 3x प्लस 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 ये वाली चीज होगी, राइट होगी ना। प्लस क्या आएगा c आएगा, यहाँ पर भी प्लस c आएगा, तो आएगा ठीक है दोस्तों, देख लो ये था क्वेश्चन। और यहाँ पे चैप्टर क्या होता है, खत्म होता है। कौन सा चैप्टर खत्म, डिफरेंशिएबिलिटी इज कंप्लीट हियर। नाउ न्यू चैप्टर इज MOD, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। ओके, तो मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में अगले लेक्चर के साथ अगली बार। तब तक के लिए ये लाइट देखो, अब ये लाइट भी हो गई शुरू। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हर एक चीज़ को पढ़िए बहुत ही बेहतरीन तरीके से, कुछ करिए, मजा करिए, खुश रहिए, साथ रहिए। सब कुछ दिख रहा है आपको बोर्ड के साथ साथ में, ऐसे ही अच्छी चीज़ हो रही है। इंटीग्रेशन भी थोड़ा बहुत किया, डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट था, डिफरेंशिएबिलिटी सीखी हमने, उसके बाद आगे चलेंगे अगले वीडियो में मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन।